MLA ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಮೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 15 ವರ್ಷ, ಅವರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. अब इलेक्शन आ रहा है को बोले तो हमारे इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त है कि ऐसे फोटो को निकालना सबसे पहले. इलेक्शन आ रहा है, सब उनके फेस डाल ले, उनके फोटो डाल ले को अब वोट आएंगे वास्ते आपको करने का नहीं है. उन लोगों को डेवलपमेंट कर रहा है. जो गरीब तबका है, जो गोइनपुर है, अरबी कॉलेज है, वेंकटेशपुर है, यहाँ पर कोई चीज का डेवलपमेंट नहीं है. इंडियन टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है. मैं इब्राहिम आपके साथ. शहर बेंगलुरु सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA KJ जॉर्ज पर लगा एक बड़ा आरोप. जी हां दोस्तों, MLA KJ जॉर्ज इलेक्शन के नजदीक कर रहे हैं इलेक्शन की गिमिक. इस तरह का जो है आरोप सुनने को मिला है. आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले MLA KJ जॉर्ज लोगों के जज्बात के साथ छेड़खानी कर रहे हैं. एक मसला जो 5 साल से नहीं हल हुआ, एक प्रॉब्लम जो कई सालों से नहीं हल हुआ, अब जो है उसके बैनर्स लगाए गए हैं ये कह करके जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इस बैनर को देखकर जो है आज बीजेपी के, JDS के और कुछ सोशल वर्करों ने जो है उसी बैनर के सामने रेलवे गेट के पास एक प्रोटेस्ट किया है, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट नसरुल्लाह शरीफ, JDS के लीडर शिवा कुमार, जनता दल सेक्युलर के लीडर इरशाद अहमद और मस्जिद मुनव्वरा के मौलाना मुताहिर सिराज मौजूद हैं. आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಏನೇನೆಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬೋರ್ನಾ ಬಂಗ್ಲಾ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷದಿಂದ. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲುಗಲೆತ್ತು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಇವತ್ತು ನೈಟು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಾಗರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ CMCಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಂದು ರಾಜ ಇದ್ದರು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ 2 ಸಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. MLA ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಮೂರು ಟೈಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 15 ವರ್ಷ, ಅವರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕಮಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಡಿಪ್ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆವಾಗ ಕಮಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಬಂದು ಇವ್ರು ಗೂಬೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಉದಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಸರ್ವದನಗರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, MLA KJ ಜಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ 8 ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು 5 ವಾರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3-4 ವಾರ್ಡು ತುಂಬ ಡಮ್ಮಿ, ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಏನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ गवर्नमेंट लिमिट के अंदर जो हर जगह 5 रेलवे गेट है, ये रेलवे गेटों के पास बोर्ड डालकर MLA KJ जॉर्ज ने बोर्ड डालकर है रेलवे ब्रिज आ रही है, अब अंडरपास आ रहा है बोल के. पिछले 15 साल से अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं मिला. हम लोग भी 10 साल 5 साल से भी उसको कई नोटिसें दिए, कई बार बुला के करे, बहुत से इंस्पेक्शन आकर आके, फिर रेलवे मिनिस्टरों भी आए, कौन भी आकर बड़े बड़े स्केच ले लगाकर कुछ नहीं करे. अभी जो बोर्ड डालने का मकसद क्या है, इलेक्शन आकर 2 महीने है. कमिंग सून बोले तो इलेक्शन को कमिंग सून है, इलेक्शन के लिए कमिंग सून है. ये ब्रिज बनने के लिए कमिंग सून नहीं है.
और ये कमिंग सून इसलिए डाला है 2 महीने इलेक्शन है। अभी इसके पास ये ब्रिज बनेगा बोल के क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? कौन से डेट में इन्हें काम चालू करा? क्या क्या गारंटी है? नहीं रहा तो लेटरिंग में लिख को देना, पूरा लेटर लिख के देना, ये डेट को मैं चालू करूँ, ये डेट में मुकम्मल ख़त्म कर सकता हूँ बोल के। यहाँ पर मुसलमान है और जो माइनॉरिटीज़ तबका इतना है और गरीबी तबका भी बहुत है, ये जगह में कोई डेवलपमेंट नहीं करके है। जो 5 रेलवे गेटों के लिए कभी अंडरपास भी नहीं बना और ओवर ब्रिज भी नहीं बना, कहीं भी कुछ अच्छा डेवलपमेंट नहीं करके है। इसके ऊपर क्या गारंटी कर सकेंगे हम? इसके ऊपर क्या भरोसा करेंगे हम? कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते हम, कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। ये कर रहेगा बोल के अभी 2 महीने इलेक्शन है, अभी गवर्नर के इंचार्ज में चला गया तो ये भी घर पे बैठेगा, इलेक्शन होने के बाद भी करेगा बोल के कुछ गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं रहेगा इसका। आप ये ब्रिज के बारे में उनको लेटर दे देंगे इससे पहले? नहीं, लेटर तो नहीं दिया, इससे पहले लेटर भी दिए थे, हम बोले भी और कई स्केच ले लगा कि यही रेलवे गेट के पास बहुत से बड़े बड़े स्केच ले लेके आए मिनिस्टर लोग भी और रेलवे मिनिस्टरों भी सभी आके आते, कुछ प्लान देखते, फिर ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे बोल के देखकर कभी कभी 100% 5 साल से यही झूठ। किसी मुसलमान के लिए कोई हक के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, किसी आवाज एक हिजाब के मामले भी नहीं खड़ा है और हलाल के मामले भी नहीं खड़ा है, अज़ान के मामले भी नहीं खड़ा, कोई मामले में भी जो माइनॉरिटीज है, जो गरीब है, गरीब बनकर ही जी रहा है, किसी के लिए हक की आवाज असेंबली के अंदर नहीं उठाया है। के अंदर सर्वोदय नगर कांस्टीट्यूंसी के अंदर अरबी कॉलेज बहुत बड़ा मदरसा है, बेंगलुरु कर्नाटका का नंबर 1 मदरसा है। यहाँ कर अमीर शरीयत है ना, उसको बार बार आते रहता है, एमएलए केजे जाते हैं, बार बार उसको इस्तकबाल करते, उसको बुलाते, वेलकम करते, बैठते, कभी उसको अच्छा काम के लिए कोई काम के लिए एक बार भी नहीं बोले अमीर शरीयत ने। कोई आजू बाजू मोहल्ले के अंदर झांक कर भी नहीं दे कि किसके ऊपर क्या गुजर रहा है बोल के। ये उल्मा ये अमीर शरीयत है ना, कभी एक बार भी इसको मोहल्ले के अंदर ये जो परेशानी है कभी भी नहीं बोले। ये सर गलती किसकी है? गलती है अमीर शरीयत की है, हम लोगों के रहबर बनकर मुसलमानों के छोटे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मुस्लिम भाई के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। अमीर शरीयत सबको तकलीफ होती है, कभी ट्रैफिक जाम हो गई ना, ये इन्हीं के रेलवे गेट के पास, इनके गेट तक, इनके मस्जिद के गेट तक भी ट्रैफिक जाम रहेगी। कभी एक बार भी इनके मुंह से इनके अल्फाज नहीं निकाले, कौम को इतनी तकलीफ हो रही है, पब्लिक को 40 साल से जी रहा हूँ मैं। ये जो एमएलए है जज है ना, कुछ बेकार है काम का, और गाँव छोड़ के गाँव आया कि मलयाली है ये गाँव छोड़ के गाँव आया केरला से, और वारम के एक बार हफ्ते को आता है, कोरमंगला में रहता है ये, इधर नहीं रहता है। कुछ भी काम रहता है किसे जाके बोलना, हम कुछ भी काम डेवलपमेंट नहीं है। हर इलेक्शन के आने पर वोट डालता है, ये करता हूँ वो करता हूँ बोलता है, अरबी कॉलेज के अंदर जाता है, नहीं करता, पॉलिसी करता आता है, कुछ काम का नहीं है। हमारा पद्मावती या बीजेपी में खड़ा है, उनको जिताओ बीजेपी से, ये करो, ये नहीं मत करो, ये क्या अब हटाओ, ये कांग्रेस का पार्टी। यहाँ जो है अब तक हम लोग जो है एक पसमानदा इलाका है। यहाँ 15 साल से जो उम्मीद पर हम लोग जो है वोट देते आ रहे थे, वो उसका क्या भी खातिर खा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। देखिए आप रोड की हालत देखिए, रास्तों की हालत देखिए, 15 साल से सिर्फ वादे ही चलते आ रहे हैं। अब उम्मीद है कि इस इलेक्शन में भी जो है सिर्फ वादे ही नज़र आएंगे, काम होना मुझे जो है मुश्किल नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं सामने सामने मौजूद है, 15 साल का अरसा हो गया, कम से कम अगर यहाँ जो है 4-5 ब्रिज है और ब्रिज डालने का काम है, ये एक पीरियड में एक भी डाल देते तो कम से कम आज 3-4 जो है ब्रिज जो है वगैरह पढ़कर रह सकते थे। आज अफसोस की बात है कि कुछ भी काम हमारे पसमानदा इलाके में नहीं हुआ। इसमें हिंदू मुस्लिम गरीब सब है, दलित है, सब है, सब जो है इसका शिकार हो रहे हैं। इलेक्शन के औकात पर जो है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उस वादे को पूरा नहीं किया जाता। कि जो बोर्डां लगी अब रेलवे गेट्स के पास से, अब डेवलपमेंट का कोई ब्रिज डालते हैं को, आप देख सकते हैं इंग्लिशपुरम की ब्रिज, फ्लैप ब्रिज, अंडरपास ब्रिज, तो मैं 7 घंटे आगा जो सामने सुंदर हॉस्पिटल है वो भी अंडरपास से, वो भी फ्लॉप, ट्रैफिक जाम, सेवानगर चले आओ वहाँ ट्रैफिक जाम। अब ये जो ब्रिजें आ रही, ये जैसा हमारे नसरुल्लाह साहब पूछे क्या तो भी फाइनल हो गया दिखाना है इन्हों। अब इलेक्शन आ रहा है करके बोले तो हमारे इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त है कि ऐसे बोर्डों को निकालना। सबसे पहले इलेक्शन आ रहा है, सब उनके फेस डाल ले, उनके फ़ोटो डाल ले को, अब वोट आएंगे वास्ते आपको करने का नहीं है, काम करने के ज़माने में नहीं करे, अब फिर वो झूठे वादे। उसके वास्ते हमारी दरख्वास्त है कि अब जैसा बताया कि लिखा पढ़ी करके दें हमें, कि अब हमारे कोई पार्टी वाला आंदे लिखा पढ़ी कर दे, लेके देने के बाद उसना आवाम की भलाई के वास्ते हम सब जोड़ को नहीं सुना, किसी एक कमेटी के वास्ते नहीं। यहाँ तो माशाल्लाह हमारे इन इलाकों में हमारा बेंगलुरु जो है ये छोटा मिनी वर्ल्ड है, ये बेंगलुरु जो है मिनी वर्ल्ड है, हर किस्म का हर आदमी रहता है यहाँ पर। तो यहाँ हमारी दरख्वास्त है कि ये जो काम होने वाला है ये बोर्डा निकाल को काम कर को दिखाने की फिक्र करें, यही हमारी सबकी
दरख्वास्त चाहत है ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नदीम शेख का, मैं जेडीएस युवा ब्रिगेड से सर्वज्ञ नगरा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हूँ। अब ये मसला क्या है, मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराने से पहले ख़ुद को ज़िम्मेदार बहुत पहले ठहराता हूँ। क्यों बोले तो पहले सबसे पहले हम ना अक्ल है ना, हमें किसे चुन रही। पहली गलती हमें कॉरपोरेटर्स को चुने, उनसे धोखा। उसके बाद एमएलए को चुने, उससे धोखा। फिर एमपी को चुने, उससे धोखा। सिर्फ यहाँ केजे जार्जिच मसला नहीं है, कई चीज़ों का मसला है। क्यों बोले तो हमें कांग्रेस 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 ऐसा दिमाग में बैठा हमारा, हमना क्या दिखता मालूम, वो पंजतन ने 5 दिखती हैं वो कांग्रेस के हाथ। पहले ये सोच बदलना हमारी, वो पंजतन ने 5 उन अलग ही, वो कांग्रेस नहीं है। वो कांग्रेस थी रहेंगे हमारे बाप दादा के ज़माने में, अब नहीं है, समझ रही है। सबसे पहले क्या है, हमें कांग्रेस को वोट दे रही, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी को जा रही है। तो हमें इनडायरेक्ट बीजेपी को जिताने से अच्छा कहीं को डायरेक्ट नहीं जिताना। मैं ओपन बोल रहा हूँ, अगर हमारे एमएलए साहब कौन तो भी बीजेपी से भी आ रही हैं, हमारी कौम को डेवलपमेंट कर रही है, हमें साथ देने रेडी हैं। लेकिन हमारे चंद कंडीशंस हैं, हमारे जो मोहल्ले के जो हालात हैं उसे बदलो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपको इंशाअल्लाह हमारा हक में क्या बनता हमें करेंगे, वो सेकेंडरी।